بلکہ صحیح حدیث میں فرمایا کہ مومن کی جو قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ باغ ہے۔ باغ میں گھٹن نہیں ہوتی، باغ میں ٹینشن نہیں ہوتی، باغ میں انسان بڑے سکون میں رہتا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ بندہ مومن کی قبر آرام کی جگہ ہے۔ حدیث صحیح میں فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ بھائی مومن کی قبر باغ ہے جنت کا، اور وہاں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو سو جا جس طرح دلہن سویا کرتی ہے۔ تو بندہ جب سوتا ہے تو وہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ سوتا ہی اس لیے کہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے۔ سوتا ہے بندہ تو اسے انرجی ملتی ہے۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹیں اترتی ہیں، آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا جسم ایک توانائی پاتا ہے۔ تو قبر کے اندر ہمیں جو بتایا گیا ہے بندہ مومن کو، وہ یہ کہا گیا ہے تو ڈائریکشن ٹھیک رکھنا، نتیجہ وہ نہ نکال دینا کہ قبر کھڈا بن جائے۔ کام اس طرح کے نہ کرنا کہ وہاں تیرے پاس سزا کے لیے فرشتے پہنچ جائیں۔ کام اعمال ٹھیک کرنا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور وہاں تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ وہاں تو کہا جائے گا سو جا آرام سے، نیند پوری کر، تو تھکاوٹیں اتار، تو یہاں آیا ہے تو سو جا۔ اور سونا بھی اس طرح نہیں، اس طرح سو جس طرح دلہن سوتی ہے۔ آج اس کا پروٹوکول ہے، آج تو اسے دنیا دیکھنے آئی ہے۔ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ طبیعت میں اس ذوق کو پیدا کیا جائے۔ میں نے قرآن مجید سورہ مریم کی دو آیات پڑھی ہیں، ان دونوں باتوں کو رب کریم نے بیان فرمایا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ خالی ترجمے پہ کبھی غور کریں تو قرآن مجید مزہ دیتا ہے۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے نا، نیک لوگ، انہیں قیامت کے دن رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے، وفد کی صورت میں۔ اور جو صیغہ استعمال کیا وہ کون سا؟ الی الرحمن۔ اللہ کے کئی اسماء ہیں نا، یہ نہیں کہا جبار کے پاس پیش کیا جائے گا، یہ نہیں کہا قہار کے پاس پیش کیا جائے۔ ایک تو گئے ہیں مہمان بن کے، اور پیش کس کے پاس کیا؟ رحمان کی بارگاہ میں۔ رحمان اتنا رحم کرنے والا جتنا کوئی کر ہی نہ سکے، اس لیے رحمان بندے کا نام ہی نہیں ہو سکتا۔ بندہ عبد الرحمان تو ہو سکتا ہے، رحمان یہ نام رکھنا جائز ہی نہیں۔ تو رحمان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے۔ تو مجھے بتائیے جو مہمان بن کے جائے، میری طرف توجہ کرنی ہے آپ سے، اس کے ساتھ سخت سخت باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے کھانے لا کے رکھے جاتے ہیں۔ جو مہمان بنا کے پیش کیا جائے اس کو سزا ہوتی ہے، یا اس کے لیے اچھے اچھے بستر بچھائے جاتے ہیں۔ فرمایا جو متقی ہوں گے نا، متقی پرہیزگار لوگ، وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے، وہ اللہ کے حضور جائیں گے مہمان بن کے۔ ان کا وہاں اعزاز ہوگا، وہاں ان کی عزت ہوگی، وہاں ان کا اکرام ہوگا، فرشتے انہیں اعزاز سے بٹھائیں گے۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلیں گے نا، تو مومنوں کی قبروں کے باہر اللہ براق کھڑے فرمائے گا، انہیں براق پہ سوار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا جو مجرم ہوں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو ہانکا جائے گا جس طرح چرواہا بکریاں ہانکتا ہے۔ اور کیسے ہانکا جائے گا؟ وہ پیاسے ہانکے جائیں گے، ڈنڈے کے ساتھ ہانک کے انہیں جہنم کی طرف پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہیں۔ مجرم کے ساتھ مجرم والا سلوک ہوگا، اور متقی کے ساتھ مہمان نوازی والا سلوک ہوگا۔ ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا، اس سے زمانہ آگاہ نہیں ہوتا، زمانہ تمہارے ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے۔
ज़माना ज़ाहिर से आगाह होता है। और इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये जो ज़ाहिर होता है ये तो चंद लम्हों का है, चंद घंटों का है। हमारे नेक अमाल का सिर्फ हमें पता है या हमारे रब को पता है। हमें खबर है कि हमारी डायरेक्शन क्या है। मसलन मैं इमामे में हूँ, दाढ़ी में हूँ, मैंने लिबास बड़ा दरवेशों वाला पहना है, पर आपको पता है कि मैंने आज दरूद पाक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपको खबर है कि मैंने सवेरे जो खाना खाया वो रिज़्क हलाल था कि क्या था? माज़अल्लाह। मेरी नेकियों का मुझे पता है, मैं उस पर गवाह हूँ। इसलिए मुझे और आपको खुद अंदाजा है कि जो काम हम सारा दिन कर रहे हैं, जो हमारी रूटीन है, वो रूटीन कौन सी है। अगर तो वो रूटीन मुजरिमों वाली है तो फिर सलूक भी डंडे वाला है, हाँकने वाला है। वही है जो बिखरी हुई बकरियों के साथ चरवाहा करता है। और अगर काम ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, हम ना बातों में जिंदा हैं। ओहो हो, बातें और कहानियां और किसी शख्स से कमेंट्स इतने तेज, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा कमेंट्स करते हैं, इतना जनाब अच्छा तबसरा करते हैं, इतना जनाब तनकीद उम्दा। क्या बात है। अमाल इंसान के उसका असल होते हैं, उसका रासुल माल होते हैं। रास उसके पास जो होती है वो उसके अमाल होते हैं। आप जब अपने नफ़े नुकसान तलाश करते हैं तो कहते हैं मेरी रास क्या है, मेरे पास पीछे बचा क्या है। जब आप कब्र में जाएंगे ना तो ये बातें, ये कहानियाँ, ये कमेंट्स, ये आपकी जनाब अपने मुंह से खुद मियाँ मिठू ये रह जाएगा। सारा रासुल माल बचेगा वो नेक अमाल की सूरत में, वो साथ लेके जाना है। अपने अमाल पर तवज्जो करेंगे ना, जब डायरेक्शन अगर ठीक होगी। अल्लाह के बंदे मौत से क्यों नहीं डरते थे? वो भाई इसलिए नहीं डरते थे कि उन्हें पता था हमारी डायरेक्शन ठीक है, परवाह कोई नहीं, बिल्कुल तैयारी या हिसाब करके रखा हुआ है। हर चीज़ का पता है, मैंने देना क्या है, मैंने लेना क्या है। अगर किसी बंदे का हक ज़ाया किया तो रात माफ़ी मांग के सोए हैं, तैयारी थी मुकम्मल। हमारा ये मसला है कि हमारी तैयारी कोई भी नहीं। लेकिन वैसे आप अगर किसी को कह दें कि तो गुनाहगार है तो हो सकता है आपके सर पे बाल कोई ना छोड़े। वैसे अगर आप किसी को कह दें कि तू दयानतदारी से नहीं चल रहा तो मुमकिन है वो जीने ना दे। अपने मुहासबे को, अपने मामलात को देखें। वो तकवे वाले हैं तो अपने रिजल्ट पर गौर करें। रब फरमाते हैं अगर तू मुत्तकी है फिर तू मेहमान बनेगा क़यामत में, और अगर तुम मुजरिम है तो फिर याद रखना, फिर तुझे हाँक के लाया जाएगा, फिर कोड़े मारेंगे तुझे और कोड़े मार के लाया जाएगा अपने आमाल पे। भाई मैंने जिंदगी में ढेर सारे जनाजे पढ़ लिए। मैंने अपने सामने उठते बैठते चलते फिरते लोग देखे। मैं समझता था कि हमारी नानी हमारे लिए सारा कुछ है, पर हम खुद छोड़ आए उन्हें कब्रिस्तान। हम समझते थे कि दादी अम्मा घर में नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, पर हमने उन्हें जाते देखा। मैंने जिंदगी में पहला जनाजा अपने अब्बा जी का पढ़ाया है, वालिद साहब का, जाते देखा, वालदा को जाते देखा। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, ये साहिब तज़किरतुल औलिया, इतने अल्लाह तबारक व तआला के करीबी लोगों में से हुए हैं कि फिर इन्होंने ना मुक़र्रबीन की लिस्ट बनाई, यानी तज़किरतुल औलिया लिखी। अल्लाह के बंदों के हालात इन्होंने जमा किए। ये अत्तार थे, इत्र बेचते थे। इत्र का कारोबार एक महंगा कारोबार है। अरब शरीफ में अल्लाह ताला हम सब को ज़ियारत नसीब करे तो सोने वाली दुकान के साथ इत्र की दुकान होती है, यानी जितना किराया वो बंदा दे रहा है उतना ये दे रहा है। इतना महंगा बिजनेस है कि लोग इसे सोने चांदी के बराबर जानते हैं। बड़ा महंगा कारोबार था। फरमाते महंगी महंगी खुशबुएं मैंने सजाई हुई थी। एक दिन एक दरवेश बाबा जी आ गए तो 2 4 5 बोतलें उन्होंने देखी, खुशबू लेनी थी। तो ये अच्छे सेलमैन होते हैं, ये ग्राहक को जाने नहीं देते। फरमाते मैंने भी आगे बढ़ के बाबा जी से कहा, जब उन्होंने देख ली काफ़ी चीज़ें तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बुजुर्गों क्या चाहिए, मुझे हुक्म करें मैं देता हूँ। क्या देख रहे हैं, कौन सी खुशबू चाहिए? तो बाबा जी फरमाने लगे, पुत्र मैं तो देख रहा हूँ कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी।
तो मैं दुनियादार बंदा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा बाबा वो क्यों? मैंने कहा पुत्र माल ही बड़ा जमा किया है, मरेगा कभी ये वाली शीशी याद आएगी, कभी वो वाली याद आएगी। नहीं समझ आई आपको बात? यानी कभी मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाला अकाउंट याद आएगा, कभी अभी बैंक वाला याद आएगा, कभी वो जो फैसलाबाद में प्लाट लिया वो परेशान करेगा, कभी लाहौर वाली सोसाइटी की फाइल डिस्टर्ब करेगी कि इतना कुछ छोड़ के मर जाऊं, इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, कभी वो पजारो कभी ये पजारो। इतना मुश्किल तो हम बनाते हैं दुनियादारी। कहा तू नहीं मरेगा, तो ये चीजें याद आएंगी। फरमाते मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करें तो गुस्सा करता है। कहते हैं मैंने कहा अच्छा बाबा मेरी जान मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? फरमाते कहने लगे बेटे इधर आ दिखाऊं। कहते हैं मैं मुड़ के ऊपर से होके बुजुर्गों के करीब आया, वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे कलमा पड़ा, रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर। बुल्ले शाह आसा नहीं उमरना, ये ते मर गया ही कोई होर। ते नाले वारस शाह वो कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। और इकबाल कहने लगे मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, फिर सुबह दवाम जिंदगी। इसके बाद तो सुबह है जिंदगी की, ये तो एक शाम हुई है बस, उठेंगे तो सवेरा होगा। तो कहते हैं बाबा जी की रूह परवाज कर गई। कहने लगे पुत्र मैं तो इस तरह जाऊंगा। फरमाते हैं मैंने ही कफन दफन किया, मैंने ही जनाजा पढ़ा, मैंने ही दफन किया, कोई वारस नहीं मिला, असी किसी दे कुछ नहीं जे लग दे, ना कोई साडा दर्दी। कहते मैंने ही दफन किया। फिर उसके बाद मुझे मसले की समझ आ गई। फिर बाद में समझ आ गई माल वारसों का है, आज भी वारसों का है, कल भी, ये पक्की बात। और वारिस अपनी अपनी तबीयत के हैं, अपने अपने मिजाज के हैं। हो सकता है आपका मेहनत का माल वो हफ्तों में ज़ाया कर दें, अपनी अपनी तबीयत के हैं ना वारिसीन। हो सकता है आपकी बड़ी बनाई हुई चीज़ें वो चंद मिनट लगाएं, गया सारा कुछ। तो बहुत सारे मामलात में अगर हमारी तवज्जो हो कि हमने जाना है और डायरेक्शन ठीक हो तो फिर मौत का कोई खौफ, फिर तो तैयारी है। हदीस बुखारी देखिएगा, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हदीस के रावी हैं, और एक मकाम पे इसी हदीस को हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रवायत किया। एक खातून हुजूर की बारगाह में आई और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का मर्ज़ है, ये बड़ा आसाबी मर्ज़ होता है। जिस्मानी अमराज भी बड़े मुश्किल होते हैं, मर्ज़ तो अल्लाह माफ़ करे कोई भी ठीक नहीं, लेकिन ये जो आसाबी मर्ज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है कि आपका दिमाग कंट्रोल में आ जाए। तो मिर्गी का मर्ज़ बंदे को बेहोश कर देता है, आसाब कंट्रोल कर लेता है, जिस्म भी कब्जे में आ जाता है। और फिर खातून हो तो वैसे ही हौसला कम होता है। अर्ज़ करती है हुजूर मुझे मिर्गी है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए दुआएं फरमाते थे, पर आज हुजूर ने एक अनोखी बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो दुआ कर देता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र। इसका माना क्या है कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। नहीं समझ आ रही बात की? मिर्गी के हम मानते नहीं, वैसे मर्ज जो आता है ना वो जाता कम ही है, गुजारा उसके साथ ही करना पड़ता है। हम पता क्या करते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ जीना नहीं सीखते। अपनी बीमारियों, आजमाइशों, परेशानियों के साथ जीना सीखें। जिनको इनके साथ जीना आ जाता है ना, वो जिंदगी का सारा सुकून हासिल कर लेता है, वो सारी आसानियां पा जाता है, जिसे अपनी मुश्किलात के बीच जीना आ गया। और जब बेचारा दिल छोड़ के बैठ गया, ओहो बस ये आखिरी टेंशन है, इसके बाद मर जाना है, वो गया काम से। मुश्किलात ही तो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ इंसान की सफाई भी होती है, वो निखर भी जाता है, तरबियत भी हो जाती है, और एक अच्छी ट्रेनिंग उसकी होती है, फिर अगले मरहले उसके लिए आसान हो जाते हैं।
हुजूर ने फरमाया अगर तू कहे दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र, गोया इसके साथ ही गुजारा करे, तो फिर क्या मिलेगा? हुजूर फरमाने लगे रब हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। हमसे वैसे पूछा जाए तो हमें शिफा ही चाहिए, क्योंकि युमिनून बिल गैब के जो मामलात है ना, उन पर यकीन रखना कामिल लोगों का तरीका है। कहा आप बताएं शिफा के जन्नत, तो सहाबा कहते हैं एक मिनट नहीं लगाया बीबी ने सोचने पे। अकीदा पुख्ता था ना, उन्हें पता था कि दरअसल हमारा फायदा ये है कि हमारी आखिरत ठीक हो, बच जाएं। फौरन वो खातून अर्ज करने लगी हुजूर गोया थोड़ी सी तो जिंदगी है, मैं इसके साथ ही गुजारा कर लूंगी, आप दुआ कर दे रब मुझे जन्नत अता कर दे, मुझे जन्नत की जरूरत है। इसके तो साथ भी टाइम, थोड़ा वक्त कितना है, वक्त कितना है, बस आ गया उठना फरीदा सुत्या, अब बस दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गई दूर, ते उठना फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत, ते उठना फरीदा सुत्या, खलकत वेखन जा, उम्मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा, कुछ कर आगे बढ़। अगला सफर जो है इस पर तवज्जो कर। ये जो सफेद बाल आते हैं ना, ये पैगाम आते हैं, ये जो बीमारी आती है ये पैगाम आता है। जब इंसान की सीधी कमर झुकती है तो पैगाम आते हैं, मैसेज शुरू हो जाते हैं कि तैयारी करो, ये ऐलान होता है। लेकिन उसका भी लोग तर्जमा और ले लेते हैं, कहते हैं नहीं उम्र नहीं मेरी ज्यादा, वैसे सफेद आ गया, नहीं वो बीमारियों ने ऐसे कर दिया है, फलाना नहीं मसला, वैसे चले तसल्ली देनी है ना दिल को, वो तो कईयों ने दी हुई है, वो दे लें किसी तरीके से, दे लें किसी तरीके से। वैसे हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, जब हजरत इजराइल लेने आ गए तो कहा अल्लाह मैं तेरा खलील हूँ, तो पहले को पैगाम तो भेजना था। तो कहा इब्राहिम जिस दिन पहला सफेद बाल आया था तो पहला पैगाम ही तो भेजा था, और जिस दिन तंदुरुस्त जिस्म में पहली दफा दर्द हुआ था तो पैगाम ही तो भेजा था। ये सारे महज पैगाम आते तो रहे, जरूरत तो थी कि तवज्जो की जाए, लेकिन नहीं की। भाई जब तवज्जो आखिरत की जानिब होगी ना, आप यकीन करें 22 साल की उम्र में भी सोच यही थी कि सेट हो जाए निज़ाम, हम सेट हो जाएं, और हमारी सोच 70 साल की उम्र में जाके भी यही होती है, पहले अपने सेट होने की होती है, होती फिर भी सेट होने की है। चले उस वक्त लफ्ज़ बदल जाते हैं कि बच्चे सेट हो जाएं, तो इतना ही है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ सेट हो रहे हैं, सेट हुए नहीं। कल एक दोस्त आए, आने लगे दुआ कर दें, 22 साल हो गए अमेरिका में, कागजात नहीं बन रहे, तो मैं चुप कर गया। कहने लगे आपने कमेंट्स नहीं किए, तो मैंने कहा यार इतनी कीमती जिंदगी, इतनी कीमती एक एक लम्हा जो कीमती है मुसलमान का, आपने 22 साल कागज के पीछे गुजार दिए। आपने कागज को जन्नत का टिकट समझ लिया, छोड़े नहीं मिलता तो, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मतलब किस चक्कर में आप पड़ गए। मैंने कहा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे 50+ हूँ अब। तो मैंने कहा अगर मिल भी गए तो फिर उसके बाद चांस कितने हैं? छोड़े, किन चक्करों में पड़े हुए, क्या मतलब दास्तान हयात है। कभी गौर करें ना तो खसारे जिंदगी में जितने हैं ना, उनमें ज्यादातर हमारी सुस्तियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं। खातून ने अर्ज की हुजूर दुआ कर दें, और नबी पाक ने जन्नत की दुआ कर दी। फिर अर्ज करती है हुजूर जब मुझे तकलीफ होती है ना मिर्गी की, तो कपड़ा जिस्म से हट जाता है, औरत हूँ, शर्म महसूस करती, दुआ करें मेरे जिस्म पे कपड़ा कायम रहे। हुजूर ने दुआ कर दी। सहाबा फरमाते जितनी भी मिर्गी होती थी कपड़े जिस्म पे कायम रहते थे। हजरत उस्मान गनी के ज़माना मुबारक तक हयात रही, बाहर से कोई आता था तो लोग कहते थे जन्नती बीबी देखनी है, का देखनी है तो कहते थे इस बूढ़ी अम्मा की ज़ियारत करो, इसे दुनिया में मदीने वाले ने जन्नत अता फरमाई है। ये चलती फिरती, अपने रिजल्ट पर गौर करें, अपने नतीजे पर गौर करें। हमारे मदरसे का रिजल्ट आया तो ढेर सारे बच्चों में एक बच्चा वो भी फेल नहीं हुआ, एक किताब उसकी रह गई। तो मैं पैगाम भेजता था, मेरे सामने नहीं आता था। मुकम्मल फेल भी नहीं हुआ,
ایک کتاب مجاز ضمنی، ہم کہتے ہیں سیپلی میں پیپر دے لے گا، گنجائش ہے، اور باقی کئی کتابوں میں نمبر بھی اچھے ہیں۔ 2-3 دفعہ میسج بھیجا، میں نے کہا اسے کو سامنے تو آیا تو ہنستے ہوئے، جی وہ اس دن ایسے تھا، رات کو میں فلانی جگہ پہ تھا، تو نمبر میرے ہیں 22، تو بس وہ اپنی سوچ میں تھا تو میں اپنی سوچ میں نے کہا ایک پرچے میں فیل ہوا ہے، وہ بھی پورا نہیں، تو کسی کے سامنے نہیں آ رہا، تو قیامت میں ہمارے بھی تو پرچے کھلنے ہیں نا۔ ایک پرچہ ہوگا ماں باپ کے نام کا، دیکھنا ہے ان کی خدمت میں تو پاس ہے کہ فیل ہے۔ یاد رکھنا یہ پرچہ ہما جنتک و نارک، نبی پاک نے فرمایا تیرا ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہیں، تو نے زندگی ان کا دل دکھا کے گزاری ہے کہ ٹھنڈک دے کے، یہ پرچہ آؤٹ ہوگا، اور میاں پاس کرے گا تو جائے گا۔ ایک پرچہ اولاد کے نام کا ہے، تیری ڈیوٹی تھی تربیت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچنا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا۔ ایک پرچہ یہ بھی ہے، یہ بھی کھلے گا کہ تو نے ڈیوٹی ٹھیک دی کہ نہ دی۔ ایک پرچہ حق حلال کا ہے کہ کمائی جائز تھی کہ ناجائز تھی، یہ بھی پرچہ ہے۔ ایک پرچہ یہ ہے کہ عمر کہاں گزاری تھی، بتا کس کس چوک میں گزری۔ وہ کہے گا جی میں نے نا بڑی ڈیوٹی کی، سال کے بعد مری میں توجہ سے جاتا تھا، کوئی ناگا نہیں میرا کگان نران کا سواد کا، کوئی کسی قسم کی چھٹی نہیں، پوچھ لیں آپ، یہ پرچہ دیں گے۔ یہ سوال ہے میدان محشر کا، عمر کہاں گزاری، اور پھر ان میں سے قیمتی حصہ جوانی کہاں گزری، یہ الگ سے پرچہ ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اور جو میدان محشر کا پرچہ ہے نا وہ ڈبل قسم کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے، تو تمہارا نہیں پیسہ، اللہ کا دیا ہوا ہے، مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا۔ یہ سوال ہے میدان محشر۔ آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ جائز پیسے دے آپ ناجائز جگہ پہ لگائیں، آپ مالک نہیں ہیں، آپ کو تو بطور امانت دیا گیا سارا کچھ، ورنہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ ایک پرچہ میرے بھائی یہ بھی ہے، ایک پرچہ ہے پورا، ایک پرچہ میدان محشر کا یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ باتیں تو بڑی آتی تھی، کہانیاں تو بڑی سناتا تھا، جب تو بات چھیڑتا تھا تو پنچایتی بھی تیری طرح کا کوئی نہیں، سیاںا بھی تیری طرح کا کوئی نہیں، پڑھا لکھا بھی تیری طرح کا کوئی نہیں، فلاسفر بھی تیری طرح کا کوئی نہیں، اور تو باتیں کرنے بیٹھتا تھا تو مفتی بھی تو ہی لگتا تھا، منطقی بھی تو ہی لگتا تھا، فلسفی بھی تو ہی لگتا تھا، درویش بھی تو ہی لگتا، ہر شے کا تجھے پتا تھا۔ یہ بتا علم پر عمل کہاں تک کیا۔ ایک شاعر نے رو کے کہا تھا لوگوں آگہی بھی ایک قیامت ہے، جو تجھے پتا ہے نا مت سمجھنا کہ یہ تیرے لیے آسانی ہے، یہ پتا ہونا بھی ایک مشقت ہے، کیونکہ جسے پتا ہوگا نا اسے پوچھا بھی جائے گا۔